Hello my dear CBSE students. Today we have to see photosynthesis further in detail. We know that the raw material needed for photosynthesis, there are four things which are necessary for photosynthesis. Number one is carbon dioxide, which plants absorb through stomata on the surface of their leaves and on other green parts. Whatever part is green in color will perform photosynthesis, will absorb carbon dioxide. Number two, water. Water is absorbed by the roots of a plant. How do they absorb water? We will see further. The next is number three, chlorophyll. Chlorophyll is essential for photosynthesis. Essential means उसके बगैर काम ही नहीं होगा. अगर वो chlorophyll नहीं होगा तो photosynthesis नहीं होगा. Number four, sunlight. Sunlight means light is necessary for photosynthesis, whether it is sunlight or any other light. We can use even bulb or any LED also, but the power should be very high. Light का intensity, brightness should be very high. ठीक है? So we will perform an activity to show that chlorophyll is essential for photosynthesis. We need four things. Plants need four things for photosynthesis: sunlight, water, carbon dioxide, and chlorophyll. So we will see. Here we will perform a thought experiment activity to show that chlorophyll is essential for photosynthesis. See, what are the steps to be performed? First we will take a leaf. This is a leaf, this green one. This is the leaf of a money plant. Money plant has variegated leaves. Take a potted money plant. Potted means the plant in a pot, गमले में लगा हुआ पौधा. ठीक है? It should and we know money plant, or we can take, instead of money plant we can take croton plant also. CROTON, croton plant. Croton plant also has variegated leaves. Variegated means multicolored. Multicolored leaves. See, there are two colors here. Some part is green in color and the other part is, let us suppose, white in color. It may be yellow in color. Actually it is yellow in color. This part is green in color. And why is it green in color? Because there is chlorophyll present there. Because of the presence of chlorophyll, this leaf is green at certain places and at other places it will be let us say yellow in color. Okay. So on our board it appears to be white in color. So this is the leaf before starch test. Before performing experiment on it, the color of the leaf is green and white. Let us say it is green and white. So we will take a potted money plant or croton plant which has multicolored leaves. We will keep the plant in dark room for 3 days to de-starch it. De-starch means all the starch will be used by the plant for energy to survive in darkness. So we will take a potted plant, money plant having multicolored leaves, green and white color. Now actually it is not white, it is yellow in color. So multicolored leaves. We will keep the plant in a dark room. ये plant को, potted plant को गमले के साथ में keep the plant in a dark room. अंधेरी काल कोठरी में उसको काला पानी की सजा दे दो. उसे अंधेरी काल कोठरी में बंद करके रख दो. कितने दिन के लिए? For 3 days. This activity may be asked in the exam for 5 marks. So keep it in darkness for 3 days. अब 3 दिन तक प्लांट अंधेरे में रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं होगा. And when there will be no photosynthesis, will the plant be able to prepare new glucose? No. New glucose नहीं बनेगा तो new glucose की चेन यानी स्टार्च भी नहीं बनेगा. प्लांट में ग्लूकोज भी नहीं बनेगा और स्टार्च भी नहीं बनेगा. ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ग्लूकोज से बनने वाली चेन यानी स्टार्च भी नहीं बनेगा. तो प्लांट को 3 दिन तक अंधेरे रूम में क्यों रख रहे हैं? If somebody asks us why we are keeping the plant in a dark room for 3 days, so we will say we want to de-starch it. De-starch means
We want that the plant should use up all the starch that was already made by it in the past. पास्ट टेंस में, भूतकाल में, जब ये प्लांट धूप में रहता था तो उसने जितना स्टार्च बनाया था फोटोसिंथेसिस करके, अब हम उसको अंधेरे में इसलिए रख रहे ताकि उसमें जो पुराना बना हुआ स्टार्च है, पुराना बना हुआ ग्लूकोज है, वो सब उसमें यूज कर लेना चाहिए, वो ग्लूकोज खत्म हो जाना चाहिए. सो ऑल द स्टार्च विल बी यूज्ड अप बाय द प्लांट. इंस्टेड ऑफ यूज्ड आई शुड राइट यूज्ड अप, ये और बेटर होगा. ऑल द स्टार्च विल बी यूज्ड अप बाय द प्लांट फॉर एनर्जी. प्लांट अंधेरे में जीने के लिए एनर्जी तो जरूरी है, तो वो ऑक्सीजन तो ले लेगा एटमॉस्फेयर से प्लांट, और ये स्टार्च को जला देगा, इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा और उससे एनर्जी बना देगा, और अंधेरे में 3 दिन में प्लांट मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा. क्यों? जीने के लिए ग्लूकोज चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी, वो कहाँ से आया? तो पुराना वाला जो स्टार्च उसके पास सेव करा हुआ था एनर्जी, जो भूख नसो पण शिदोरी असो, यानी इवन इफ वी आर नॉट फीलिंग हंग्री वी मस्ट हैव अ टिफिन विद अस, तो उसके पास जो टिफिन था, उसके पास जो ग्लूकोज जमा था, वो ग्लूकोज के भरोसे वो 3 दिन तक जीवित रह जाएगा, जिंदा रह जाएगा. आफ्टर दैट नाउ कीप द डी स्टार्च प्लांट. वो प्लांट अब कैसा हो चुका है? डी स्टार्च, यानी उसका स्टार्च खत्म हो गया. अब ये खत्म स्टार्च वाले प्लांट को 6 आवर्स तक सनलाइट में रखो. सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा? इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब वो फिर से क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा 6 घंटे में, और 6 घंटे में फिर क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, और फिर ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए ग्लूकोज को काय में कन्वर्ट करेगा? स्टार्च में. नाउ प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट. उसी प्लांट का जो प्लांट सनलाइट में था 6 घंटे तक, उसने in 6 hours what has it prepared? Glucose, and from glucose it has prepared starch. Now we will keep the we will pluck a leaf from the plant. हम एक पत्ता तोड़ लेंगे उसमें से, एक पत्ता तोड़ लेंगे उस लीफ का, उस प्लांट का, और उस पे ग्रीन एरियाज पे मार्क कर देंगे. The leaf was green in color and we will mark green areas on it. Green areas कैसे मार्क करेंगे? ये लीफ ग्रीन है तो we will take a permanent marker pen or any other thing. We will put the green areas in like this. Green area के ऊपर हम बॉर्डर बना देंगे ब्लैक कलर की, ऐसे. Now what will happen? हमको पता चल जाएगा कि these areas are green in color. जहाँ जहाँ हमने मार्क लगाए थे वो एरिया कैसे कलर के थे? ग्रीन थे. और ये परमानेंट मार्कर है, ये इंक वाटर में डिसॉल्व, लेट अस सपोज वाटर में डिसॉल्व नहीं होती. ठीक है. अब क्या होगा? एक लीफ हमने वहां से प्लांट से तोड़ लिया. सबसे पहले क्या किया हमने? मनी प्लांट ली, उसके मल्टी कलर्ड लीव्स है, फिर हमने उसको अंधेरे में रखे, उससे क्या हुआ? उसका स्टार्च खत्म हो गया. फिर हमने उसको डी स्टार्च किए हुए प्लांट को सनलाइट में रखा 6 घंटे तक. उसने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया. अब हमको मालूम नहीं उसने फोटोसिंथेसिस किया तो स्टार्च कहाँ बनाया, कैसे बनाया, वो सब नहीं मालूम. हम क्या करेंगे? इस प्लांट को उठाएंगे, एक पत्ता तोड़ लेंगे उसका, उसके में ग्रीन एरिया जो ग्रीन कलर दिख रहा है लीफ का, लीफ में जहां जहां ग्रीन कलर दिख रहा है उस पे हम कलर लगा देंगे. नाउ डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. अब इस लीफ को तोड़ लेंगे, ये वाला जो लीफ है ग्रीन वाला, जिसमें ग्रीन एरियाज है, और हमने ब्लैक कलर से जिसमें निशान लगा दिए, इसको हम बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, उबलते हुए पानी में 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में डाल देंगे. उससे क्या होगा? ऑल द डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. उससे क्या होगा? फिर बाद में हम क्या करेंगे? बॉइलिंग वाटर में प्लांट जो लीफ को डाल दिए, उसके बाद देखो क्या करेंगे. नाउ इमर्स द लीफ इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल. हम एक बीकर लेंगे, दिस बीकर कंटेन्स अल्कोहल. व्हाट इज देयर इनसाइड दिस बीकर? इथिल अल्कोहल, शराब, दारू. एंड उस दारू वाले में क्या करना है हमको? वी विल पुट द लीफ. This leaf is there inside it. Alcohol. And अब हम अल्कोहल को गर्म नहीं कर सकते डायरेक्टली. We cannot heat alcohol directly because alcohol catches fire. अल्कोहल जलता है, दारू जलती है ना. आगे चल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि nowadays the government is planning and in some countries they are using gasohols. Gasohols और power alcohol. अपनी बुक में power alcohol वर्ड आया. पावर अल्कोहल का मतलब क्या? अगर आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, बोलोगे भैया मुझे 100 रुपए का पेट्रोल चाहिए, तो वो क्या करेंगे? 80 रुपीज का पेट्रोल भरेंगे अपनी गाड़ी में और 20 रुपीज का दारू भर देंगे. इथिल अल्कोहल, दारू, एथेनॉल. तो 80 रुपीज का पेट्रोल एंड 20 रुपीज की दारू. पेट्रोल प्लस दारू मिक्स हो जाएंगे और पेट्रोल भी जलता है गाड़ी में और दारू भी जलती है.
और क्योंकि पेट्रोल बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं और दारू तो भट्टी पे बना लेते लोग जल्दी जल्दी से, तो दैट्स वाई दारू बनाना आसान है। इट इज़ वेरी इजियर टू मेक इथिल अल्कोहल। दैट्स वाई पेट्रोल की बचत करने के लिए नाउअडेज पीपल आर यूजिंग पावर अल्कोहल, और अल्कोहल प्लस पेट्रोल के मिक्सचर को पावर अल्कोहल भी बोलते हैं, गैसोहोल भी बोलते हैं। गैसोलीन यानी पेट्रोल एंड अल्कोहल का ओहोल, सो गैसोलीन मतलब पेट्रोल, गैसोलीन प्लस अल्कोहल इज गैसोहोल, गैसोलीन यानी पेट्रोल। सो अल्कोहल को जलाए तो हीट से आग पकड़ लेगा और अल्कोहल जल जाएगा, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, वी विल पुट दिस बीकर कंटेनिंग अल्कोहल एंड द लीफ इनटू अनदर बीकर, इसको हम बड़े बीकर में रखेंगे, बड़े बर्तन में रखेंगे। देयर इज अ बिगर बीकर व्हिच अपीयर्स रेड इन कलर, और इसके अंदर यहाँ रहेगा पानी। This is a big beaker containing water. Bigger beaker containing hot water. और ये hot water क्यों है, क्योंकि उसको हमने हीट किए by using Bunsen burner, by using burner in the laboratory. So we have अब साइड में हीट कर रहा, मैं जगह नहीं है तो और ये जो बिगर बीकर है कंटेनिंग हॉट वाटर, इसी को साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है वाटर बाथ, इट इज कॉल्ड वाटर बाथ। तो सबसे पहले क्या होगा, हम ये पानी को गर्म करेंगे, दिस वाटर विल गेट हीटेड अप, ये पानी गर्म होगा, पानी के गर्म होने से ये सेकंड बीकर गर्म होगा, अल्कोहल वाला बीकर, अल्कोहल वाला बीकर गर्म होने से इसके अंदर अल्कोहल गर्म होगा, अल्कोहल के गर्म होने से वो लीफ गर्म होगा, और लीफ के गर्म होने के बाद क्या होगा, what will happen to the leaf? देखो, immerse the leaf in a beaker containing alcohol and put this beaker in a water bath, bigger beaker में रखो, water bath में रखो, और उसको heat supply करो। The leaf becomes colorless, ये leaf जो है कलरलेस हो जाएगा, उसका ग्रीन कलर निकल जाएगा, और उसमें जो येलो कलर था वो भी निकल जाएगा, it will become colorless. Leaf becomes colorless due to loss of pigments. पिगमेंट्स का मतलब क्या है, अगर ये रेड कलर का था होगा लीफ में अगर रेड या ऑरेंज कलर होगा तो वो क्यों होता है, लीफ में क्लोरोफिल के कारण लीफ ग्रीन होता है, क्लोरोफिल के कारण लीफ ग्रीन रहता है, और जो लीफ येलो कलर का दिखता है उसमें ज़ैंथोफिल होता है, दिस इज अनदर केमिकल पिगमेंट, ज़ैंथोफिल के कारण कोई भी लीफ येलो होता है। एंड कैरोटीन, this is also a pigment, and because of this pigment the leaf appears red. तो अगर इनमें से जो भी पिगमेंट्स होंगे, मैंने रियल लाइफ में वो क्रोटॉन प्लांट मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा, माय नॉलेज इज बुकिश, सो अब द लीफ बिकम्स कलरलेस ड्यू टू लॉस ऑफ पिगमेंट्स, जो भी उसके कलर थे उनके जो भी पिगमेंट्स थे, केमिकल्स थे उसमें के स्टिकी लिक्विड्स वो सब निकल गए, एंड द अल्कोहल सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन, अल्कोहल सॉल्यूशन ये जो है दिस सॉल्यूशन विल बिकम ग्रीन। Why has this solution become green? Because ये leaf में का क्लोरोफिल निकल गया, बॉइलिंग अल्कोहल बॉइल हो रहा है, इसमें दारू उबल रही है, और वो बॉइलिंग अल्कोहल के कारण लीफ में का क्लोरोफिल निकल जाएगा, क्लोरोफिल भी निकल जाएगा, कोई और ज़ैंथोफिल होगा या कैरोटीन होगा या कोई और कलर भी होगा तो सब निकल जाएंगे, एंड द सॉल्यूशन, लेट अस सपोज द सॉल्यूशन विल बिकम ग्रीन इन कलर, ठीक है। Now dip the leaf in iodine solution. मैंने आपको एक एक्टिविटी बताया था कि जब भी स्टार्च प्लस आयोडीन मिलता है, स्टार्च प्लस आयोडीन मिलता है तो कौन सा कलर दिखाई देता है, डार्क ब्लू कलर दिखाई देता है। ग्लाइकोजेन हमारे लिवर में क्या रहता है, ग्लाइकोजेन क्या रहता है लिवर में, ग्लाइकोजेन, ग्लाइको यानी ग्लूकोज, जेन यानी जनरेट करना। प्लांट्स को अगर ग्लूकोज स्टोर करके रखना है उनके बॉडी में तो वो स्टार्च बना के स्टोर करते हैं, और ह्यूमन बींग्स को अगर ग्लूकोज स्टोर करना है अपनी बॉडी में तो वो ग्लाइकोजेन नाम का केमिकल बना के स्टोर करके रखते हैं, और बाद में फिर ग्लाइकोजेन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और यूज करते हैं। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ग्लाइकोजेन बन के हमारे लिवर में और मसल सेल्स में जमा रहता है, ठीक है। नाउ सी डिप द लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन। अब ये वाला जो ग्रीन वाला लीफ है, बिफोर स्टार्च कैसा दिख रहा था, ये पहले ऐसा था, ये इसका ग्रीन कलर भी गायब हो गया। ग्रीन कलर क्यों गायब हो गया, हमने उसको अल्कोहल में डुबा दिया, तब ये तो, लेकिन इसका ग्रीन कलर गायब हो गया,
ग्रीन कलर गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमने उसको अल्कोहल में डुबाया, तो अल्कोहल ने क्या कर दिया, उसका ग्रीन कलर निकाल दिया। तो अब ग्रीन कलर दिख रहा है क्या? नहीं, बट ब्लैक कलर अभी भी दिख रहा है। ब्लैक कलर इज स्टिल विजिबल। ग्रीन कलर कहाँ गया? अल्कोहल में गिर गया, और ब्लैक कलर अभी भी दिख रहा है। अब ये वाला जो लीफ है बिफोर स्टार्च टेस्ट, ऐसे कलर का जो दिख रहा है लीफ विदाउट क्लोरोफिल, इस लीफ को क्या करना है हमको? इस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाना है। तो जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो जहां जहां पहले ग्रीन कलर था, अब वहां ब्लू कलर आ जाएगा, डार्क ब्लू कलर आएगा, ब्लूइश ब्लैक। अब पूछो ब्लूइश ब्लैक कलर क्यों आया? बिकॉज जो जो एरिया ग्रीन कलर का था वो ग्रीन क्यों था? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल था, और जहां जहां क्लोरोफिल था वहां वहां फोटोसिंथेसिस हुआ, और जहां जहां फोटोसिंथेसिस हुआ वहां वहां ग्लूकोज बना, और जहां जहां ग्लूकोज बना तो बाद में वो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, और जहां जहां स्टार्च था वहां आयोडीन मिला तो डार्क ब्लू कलर मिला। यहां क्यों नहीं मिला डार्क ब्लू कलर बीच में? क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल था ही नहीं। क्लोरोफिल नहीं था तो स्टार्च भी नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना इसीलिए आयोडीन में डुबाने पर, आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाने पर यहाँ ब्लू कलर नहीं मिला। यहीं पर ब्लू कलर क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल था, और जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, और जहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ वहाँ स्टार्च बना, और जहाँ स्टार्च बना वहीं पर ब्लू कलर मिला। अंडरस्टूड? Where there is chlorophyll, there only starch will be produced, and if chlorophyll is not present in certain parts, there will be no starch formation, there will be no photosynthesis in that particular part, and no starch will be prepared there. And if we dip the leaf in iodine solution, we will get blue color only in those areas where chlorophyll was present. Understood this one? Alright. This is the activity which shows that chlorophyll is essential for photosynthesis. Do you want to note it down? चलो 1 मिनट में नोट डाउन कर लो। You can pause the video, you can take a screenshot also, but still ठीक है, नोट डाउन कर लो। Alright, let me erase everything from here. See, we will perform second activity. This second activity is to show that carbon dioxide is essential for photosynthesis. In short, I am, instead of writing carbon dioxide, I am writing only CO2. You know CO2 is the molecular formula of carbon dioxide gas. CO2. So, is essential for photosynthesis. It is understood. For photosynthesis. Now, we are performing another activity which will show that carbon dioxide also is essential for photosynthesis. Essential और important में क्या difference है? Important का मतलब है जरूरी है, चल जाएगा अगर नहीं भी मिला तो। जैसे अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, अच्छी बात है, बट खाना इज एसेंशियल। अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, पुराने कपड़े भी पहन के भी जी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो एसेंशियल यानी इतना जरूरी कि उसके बगैर काम नहीं जमता। सेकेंड एक्टिविटी, वी विल टेक 2 potted plants of same height. This is pot A, गमला नंबर 1, गमला A, and this is गमला B, pot B. Pot A, pot B. In pot A there is one plant. These are the leaves. My drawing is not very good, but still it
इतना तो आता है बेसिक ड्रॉ करना मुझे। See, so these are the two plants and they have equal height, almost equal height. We will take two potted plants, pot A, pot B, or plant A, plant B, and both the plants are of same height. We will keep both the plants are green in color. They are green in color. ठीक है? Green, green. Both are kept in. Both have starch already present in them. Both the plants have starch in them. And now we will keep these plants. सबसे पहले क्या करेंगे? Keep in a dark room for 3 days. किस लिए? To de-starch them. उनको डिस्चार्ज करने के लिए फिर से अंधेरी कालकोठरी में रख दो। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद क्या करो? दोनों का स्टार्च खत्म हो गया, दोनों ने जीने के लिए स्टार्च को यूज कर लिया अपना, इसका भी स्टार्च खत्म, इसका भी स्टार्च खत्म। अब क्या करेंगे हम? नाउ कीप बोथ द प्लांट्स, both the potted plants in sunlight for 6 hours। I think टेक्स्ट बुक में देखने दो मुझे। It is not given in our book, but 6 hours के लिए रख देंगे क्योंकि 6 hours में स्टार्च वगैरह बन जाता है। Now keep both the plants in sunlight for 6 hours। लेकिन this time देखो हम क्या कर रहे हैं? Cover both the plants, cover both the plants with glass jars and seal all the gaps so that no air should go inside the jars। यानी इसके ऊपर भी ग्लास जार रख दो, कांच का बर्तन, इसको ढक्कन बंद कर दो, पैक कर दो, इस पे भी कांच का ढक्कन लगा दो, इसको भी पैक कर दो, वैसेलीन लगा दो, यहाँ पे वैक्स लगा दो, वैक्स और वैसेलीन, वैक्स और वैसेलीन लगा दो। अब क्या होगा? बाहर की एयर अंदर नहीं जा सकती। अच्छा, ये करने से पहले क्या करना है? एक वाला जो है उसमें से ए वाला जो है इसके पास में पुट वन डिश, पुट वन प्लेट। हियर वी हैव टू पुट वन प्लेट, वॉच ग्लास प्लेट, और प्लेट को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वॉच ग्लास। एंड दिस वॉच ग्लास कंटेन्स KOH। KOH क्या है? It is a chemical substance which is called potassium hydroxide। In the jar A we will put a plate containing KOH solution, liquid KOH, potassium hydroxide। और potassium hydroxide क्या करता है मालूम है? Potassium hydroxide KOH has a tendency to absorb all CO2। तो यहाँ KOH रख देने से क्या होगा मालूम है? यहाँ की पूरी CO2 KOH ने absorb कर लिया। तो इतने in this entire area there is no CO2, no CO2, no CO2। Why? Because all the CO2 is absorbed by KOH, and here we did not put KOH solution, so CO2 is present here, CO2 is present। Now again 6 hours तक we will put these jars
pots in sunlight for 6 hours and after 6 hours we will see कि photosynthesis हो गया होगा और photosynthesis होके क्या होगा, ग्लूकोज बन गया होगा, स्टार्च बन गया होगा। अब हम ये बेल जार हटा लेंगे, जो ग्लास जार है ये हटा लेंगे और एक लीफ इसका तोड़ेंगे और एक लीफ इसका तोड़ेंगे, ठीक है। इसका एक लीफ लेंगे, we will take one leaf from this plant and we will take one leaf from this plant। इसका एक लीफ ले लेंगे, दोनों का एक एक पत्ता तोड़ लेंगे और दोनों को फिर से वही प्रोसीजर, अल्कोहल डुबाना, गर्म करना जैसे प्रीवियस एक्टिविटी में किए थे हमने, और फिर दोनों को आयोडीन सॉल्यूशन में डुबा देंगे, ठीक है। प्लग वन लीफ, यहाँ क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4, पुट KOH सॉल्यूशन इन jar A, do not put in B, do not put KOH in jar A, मतलब in a plate inside jar A, do not put KOH in jar B। फिर क्या होगा, पॉइंट नंबर 5, KOH will absorb all CO2 in jar A। So no photosynthesis will take place, no photosynthesis will take place in jar A, and what will happen, starch test will show that starch was not formed, starch is not formed in plant A because there was no CO2 in jar A। So iodine plus starch, starch plus iodine, what do we get? Starch plus iodine is dark blue color। पॉइंट नंबर 6 बना लूं ऐसे अपने मन से, लीफ फ्रॉम potted plant A will not show dark blue color with iodine solution, because no starch was formed, no starch is formed in plant A due to lack of CO2, due to lack of CO2। In plant B, starch is formed, starch is formed due to photosynthesis, and the leaves become blue when dipped in iodine solution। When dipped in iodine solution, क्योंकि वहां स्टार्च बना हुआ, बहुत डिटेल में नहीं लिखा, आप समझ गए, ठीक है। यहाँ KOH है, it will absorb all CO2 and because there is no CO2, no photosynthesis will take place। There is sunlight, sunlight is present, sunlight दोनों जगह में है, दोनों को वाटर भी दिए थे हमने, दोनों को वाटर भी दिए थे हमने, सनलाइट इसको भी मिला,
सनलाइट है, वाटर है, इसके पास क्लोरोफिल भी है, ग्रीन है क्योंकि क्लोरोफिल है, दिस इज ऑल्सो ग्रीन क्योंकि क्लोरोफिल है। बट यहाँ पर CO2 नहीं था और यहाँ CO2 था, तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और इधर वाले में फोटोसिंथेसिस होगा। और जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा उसमें स्टार्च बनेगा, स्टार्च के साथ आयोडीन मिलाएंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ मिलेगा तो स्टार्च ये लीफ ब्लू कलर का हो जाएगा, ये वाला लीफ ब्लू कलर का नहीं हो जाएगा। तो दिस एक्टिविटी शोज दैट CO2 is essential for photosynthesis. Without CO2, photosynthesis cannot take place. Understood? अच्छा, एक क्वेश्चन मन में ही आ रहा है मेरे कि उस दिन भी पूछा था मैंने कि in desert plants like cactus, they do not open their in desert plants stomata are closed during the daytime because they do not want to lose their water by due to transpiration. पानी की बचत करने के लिए डेजर्ट प्लांट्स अपना स्टोमेटा दिन के समय नहीं खोलते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती और बहुत ज़्यादा धूप के कारण वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो प्लांट तो विल्ट हो जाएगा, WILT विल्ट, ड्रूप हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो इसीलिए प्लांट अपना डिहाइड्रेशन बचाने के लिए स्टोमेटा क्लोज करके रखते हैं। कौन से प्लांट? डेजर्ट प्लांट्स। तो फिर CO2 कहाँ से आएंगे उनके पास? फोटोसिंथेसिस कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो? तो रिमेंबर, ये डेजर्ट प्लांट्स रात में स्टोमेटा खोलते हैं और रात में स्टोमेटा खोल के CO2 ऑब्जर्व कर लेते हैं और रात में CO2 ऑब्जर्व करके क्या करते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रखते हैं। रिमेंबर, अगर समझो 5 बजे उठ के आपको ट्रेन पकड़ना है सुबह, कल सुबह मान लो लॉकडाउन खत्म हो गया और आपको कल सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ना है और आपके मम्मी बोल रहे बेटा चाय पराठा खा के ही जाना, खाली पेट नहीं जाना। तो आप बोलेंगे मम्मी 5 बजे इतने जल्दी उठकर चाय पराठा भी और सब कैसे इतने जल्दी कैसे बन जाएगा? तो आपके मम्मी क्या करेंगे? ठीक है बेटा बोलेंगे डोंट वरी, आधा काम मैं रात में करके रख दूंगी और आधा काम सुबह उठ के जल्दी कर दूंगी। आपके मम्मी क्या करेंगे? पराठा बनाने के लिए आटा लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, उसमें नमक डाल देंगे, उसको आटे को गूंथ लेंगे अच्छी तरह से। शी विल नीड द डो और फिर क्या होगा? आटा गूंथ कर रेडी रख देंगे। और चाय के लिए वो गैस के बर्नर के ऊपर एक गंज रख देंगे, बर्तन रख देंगे, बर्तन में पत्ती और शक्कर और पानी डाल के रख देंगे और बस सुबह जल्दी से आधा काम उन्होंने रात में कंप्लीट कर दिया, आधा माल रात में बना के रख दिया और बचा हुआ आधा माल क्या करेंगे? वो सुबह बनाएंगे। अब सुबह तुरंत वो चाय वाले में दूध डाल देंगे, उसको गैस को ऑन कर देंगे, रात में गैस बंद था। और फिर दूसरा वाला जो है आटा जो गूंथ कर रखे थे, अब सुबह जल्दी जल्दी उसकी रोटी बेलेंगे और तवे पर रोटी सेक के आपको पराठा दे देंगे जल्दी से। तो जब उनको मालूम है कि रात में काम करके रखना, तो आधा काम उन्होंने रात में कर लिए, बचा हुआ आधा काम दिन में करें। तो डेजर्ट प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी प्लांट्स क्या करते हैं? रात में CO2 रिलीज करते हैं, इसीलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में, हरे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में, क्योंकि वो CO2 रिलीज करते हैं और बहुत ज्यादा CO2 रिलीज कर लिए, इनहेल कर लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग होती है एंड इट विल लीड टू डेथ ऑल्सो। कोई कोई लोग ब्लैंकेट वगैरह पूरा ओढ़कर सो जाते हैं, वही CO2 रिलीज करते हैं, वही CO2 इनहेल करते हैं, इट विल लीड टू डेथ ऑल्सो, मर भी सकते हैं इससे, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग से। अच्छा, तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं? रात में CO2 अब्सॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, क्योंकि दिन में स्टोमेटा नहीं खुलता तो रात में अब्सॉर्ब कर लेते हैं स्टोमेटा खोल के CO2 और वो CO2 से क्या करते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं, यानी आधा माल बना के रख देते हैं और जब धूप निकलती है सुबह तो फिर बचा हुआ काम कंप्लीट करते हैं और फिर वो अपना ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। हाँ, सिंस द स्टोमेटा, बहुत सारे बुक्स में नोट्स में क्वेश्चन पूछा है, सिंस द स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम इन डेजर्ट प्लांट्स, हाउ डू दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? तो आंसर लिखना होता है कि सिंस डेजर्ट प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम, they open their stomata at night and absorb carbon dioxide and prepare an intermediate, ये वर्ड याद रखना, intermediate product, intermediate यानी बीच का प्रोडक्ट बना के रखते हैं 50-50, they make an intermediate product and during the daytime when there is sunlight they complete the remaining process and in this way photosynthesis is completed by desert plants। तो ये एक्टिविटी समझ में आ गई आपको? हाँ, अब देखो एक थर्ड एक्टिविटी है, हमारी टेक्स्ट बुक में ये दो एक्टिविटी समझा कर दी है। These two activities, इससे पहले वाली और ये वाली, these two activities are explained in our textbook and they have given the third activity as an assignment।
थर्ड एक्टिविटी क्वेश्चन की तरह दे दी उन्होंने, थर्ड एक्टिविटी का क्वेश्चन दे दिया, हमको बना के देना है। क्या है एक्टिविटी? शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, सूर्य प्रकाश जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कैसे करेंगे? सनलाइट कैसे जरूरी कर, उसका इंतजाम कैसा होगा? तो सी वी विल टेक अ पॉटेड प्लांट, उसके एक लीफ, ये एक लीफ है एंड दिस इज अनदर लीफ। अब इस लीफ को हम क्या करेंगे? पहले अंधेरी कालकोठरी में रख देंगे तो इसका पूरा स्टार्च खत्म हो जाएगा। वी विल कीप इट इन अ डार्क रूम, लिखने में टाइम वेस्ट होता है। कीप इन डार्क रूम फॉर 3 days, फॉर 3 days। किस लिए? टू डिस्टार्च, डिस्टार्च यानी पूरा स्टार्च खत्म हो जाना चाहिए। यूज कर लेगा एनर्जी जीने के लिए 3 दिन, क्योंकि 3 दिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अंधेरे में, तो जीने के लिए तो उसको स्टार्च चाहिए, तो यूज कर लेगा प्लांट। एनर्जी के लिए स्टार्च चाहिए, और प्रोटीन से क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग होता है। फिर उसके बाद क्या करना? कीप इन सनलाइट। पहले क्या कर लेना? पुट अ ब्लैक पेपर on a leaf having a star shaped open part, open or exposed area to sunlight। इतना पार्ट सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर काला कागज बांधो, काला कागज, ब्लैक पेपर, PAPER, आई एम नॉट सेइंग पेपर, ब्लैक पेपर, इट इज ब्लैक पेपर। काला कागज इसके ऊपर बांध देंगे हम, और वो काला कागज में थोड़ा सा पोर्शन ओपन रख देंगे हम। वी विल कीप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट ओपन टू सनलाइट एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी क्लोज्ड। अब स्टार कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। वी कैन कीप एनी शेप, मैं स्टार रख रहा हूँ, वी कैन कीप एनी शेप, सर्कुलर शेप कर देंगे, है ना, ये इजियर हो जाता है, सर्कुलर शेप। इतना पार्ट खुला रहने दो और इतने पार्ट पे ब्लैक पेपर लगा दो। दिस इज ब्लैक पेपर एंड वी नो ब्लैक कलर अब्सॉर्ब नियरली 98% हीट, 98% लाइट। तो ये ब्लैक कलर हीट लाइट अब्सॉर्ब कर लेगा एंड देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर नो फोटोसिंथेसिस, क्यों? क्योंकि देयर इज नो सनलाइट, और यहाँ पर स्टार्च बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सनलाइट आ रहा है, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट, इसमें CO2 प्रेजेंट, CO2 इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, पानी भी दे दिया हमने इसको, सब मिल गया। इतने पार्ट को सनलाइट नहीं मिला तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इतने पार्ट को सनलाइट मिला सर्कुलर पार्ट को, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा और यहाँ पर स्टार्च बनेगा। फिर हम वो जो आयोडीन वाला टेस्ट करेंगे तो यहाँ ब्लू कलर आ जाएगा, बाकी जगह ब्लू कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी फिर आप लिख लेना, बिकॉज ऑलरेडी भी बुक में असाइनमेंट के तौर पे दिया, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लिख लेना। लेट अस टॉक हियर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।